संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती, तत्व ज्ञान, करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਆਦਿ ਠੀਕ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਨਿਟ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਭੈਣ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਹੇਜ ਮੁਫਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਉਜੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸੇ। ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਭੰਡਾਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, अक्सर हम यह मान लेते हैं कि जो भक्ति हम कर रहे हैं वही सही है,
और इससे ही हमें सभी लाभ मिल रहे हैं। पर जब हम गहराई से सोचते हैं तो यह भी समझ आता है कि कई लोग जो उसी साधना को करते हुए भी जीवन में इतना दुख झेलते हैं कि आत्महत्या तक की स्थिति आ जाती है। ऐसी ही दर्द भरी कहानी है अनीमा खलको जी की, जो जशपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हैं। अनीमा जी का संबंध क्रिश्चियन धर्म से है, लेकिन उनके घर में कभी शांति नहीं थी। हमेशा कलह, नशा और झगड़े का माहौल बना रहता था। खासकर जब किसी त्योहार का दिन होता तब लड़ाई झगड़ा और बढ़ जाता था। लेकिन फिर अनीमा जी को पूर्ण सद्गुरु की शरण मिली। वहां से उन्हें शास्त्रों के अनुसार भक्ति करने का सही ज्ञान मिला और उन्होंने समझा कि पहले उन्हें लाभ क्यों नहीं मिल रहे थे, और जिनको मिल रहे थे वह उनके पूर्व जन्म के संस्कारों का परिणाम था। आज अनीमा जी का जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। उनके पति, जो पहले बेरोजगार थे, अब दुबई में अच्छी नौकरी कर रहे हैं। उनके घर में अब कोई नशा नहीं करता और शांति का वातावरण है। दर्शकों, आइए जानते हैं अनीमा खलको जी की जीवन यात्रा के इस अद्भुत परिवर्तन के बारे में, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अनीमा खलको। अनीमा खलको जी, आप कहाँ से हैं? मैं जिला जशपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। अनीमा जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? मैं नाम दीक्षा 14 नवंबर 2013 को बरवाला आश्रम हरियाणा में ली, संत रामपाल जी महाराज जी से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? सर, मेरा जन्म क्रिश्चियन परिवार में ही हुआ। मैं ईसा मसीह की भक्ति बहुत श्रद्धा से करती थी और भक्ति करते करते ही मुझे इतना कष्ट था। परिवार में नशा, जितने भी क्रिश्चियनिटी में त्यौहार आते हैं, और गलत खान पान की वजह से, नशा की वजह से मेरे परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा हुआ करता था और परिवार में अशांति रहती थी और मुझे भूत प्रेत की बाधा बहुत ज़्यादा थी। हम वैद्य को दिखाने लगे थे, तो इतने लोगों को दिखाने के बावजूद भी मेरे को कोई आराम नहीं था। पढ़ाई में सबसे ज़्यादा बाधा थी और एक दिन ऐसा हुआ कि इन सब चीज़ों से मैं बहुत परेशान होकर के आत्महत्या करने की सोच ली थी और कहीं से सुनी थी कि इस चीज़ को खाने से मृत्यु हो जाती है। मैंने उस चीज़ को खा भी ली थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ मुझे। और फिर हमेशा सोचती थी कि परिवार में इतना नशा होता है, समाज में इतनी बेइज्जती होती है, उससे अच्छा है कि मैं फांसी लगा के मर जाऊं और ये सब मुझे देखना नहीं पड़ेगा। इतना परेशानी मुझे थी और जितने भी क्रिश्चियनिटी में जो त्यौहार आते थे उसमें नशा बनता ही था और पीने के बाद मेरे परिवार में इतनी लड़ाई होती थी। फिर घर परिवार पड़ोसी लोग आते थे, उसके बाद में बोलते थे कि इतना उधारी है, आप लोगों को देना है। और मेरे घर से मेरे पिताजी को होशो-हवास नहीं होता था कि उसने कितनी उधारी कर ली है। हमारी इच्छाओं की उसने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की और इतना नशा की इतना ज़्यादा थी कि उन्हें ड्यूटी भी नहीं कर पाते थे। उनको हमेशा कुछ मीटिंग होता था तो उनको ले जाना पड़ता था। सर जी, एक बार ऐसा हुआ कि नशे के कारण समाज में जो हमें बेइज्जती होना पड़ता था, तो इसके कारण हम लोग अपने माता पिता को नशा छूटने का जो दवाई खिलाना चाहते थे, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उसमें हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थीं और आपके घर में बहुत ज़्यादा नशा होता था, उसका इफ़ेक्ट आप लोगों पर पड़ता था, तो फिर इतनी परेशानियों के बीच संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता चला? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मुझे अपने बड़े भैया से पता चला। उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से सब कुछ ठीक हो जाता है। इतना सुन के ही मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बोली कि मुझे भी लेकर के चलना, और जब उन्होंने हाँ कहा और मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मैंने आश्रम में प्रवेश किया, नियम भी नहीं देखे, बस मुझे नाम दीक्षा लेना था और गुरुजी के दर्शन करने थे, संत रामपाल जी महाराज जी के। जैसे ही मैंने नाम दीक्षा ली और गुरुजी के दर्शन हुए और गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया, उसके बाद हम घर आकर के हम अपने माँ को, भाभी को हमेशा बताते थे कि बाइबल में ये लिखा हुआ है, आप लोग जान लीजिए। इतना दिन तक आप लोगों को नहीं मालूम था। संत रामपाल जी महाराज जी सही हैं, सारे चीज़ों को
बता रहे हैं, प्रमाणित करके बता रहे हैं, आप लोग खोल के देखिए, उसके बाद में विश्वास कीजिए। उसके बाद मेरी शादी हो गई। उसके बाद में मैंने वहाँ जब जा कर के देखा कि वहाँ भी भूत प्रेत की बहुत ज़्यादा बाधा है, तब मैंने कहा कि यहाँ भी वही परेशानी है। उसके बाद में मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा तो ले लिए थे। उसके बाद में कुछ फिर वहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारे वैद्य लोगों को बुलाए थे। उन्होंने बकरी और कबूतर, मुर्गा, ये सब उन्होंने मांगा कि ये सब दे दीजिए, हम लोग कर देंगे, सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने एक लाल कपड़े में नारियल बांध करके पूरे घर को बंद कर दिया कि इसमें आप लोग नहीं जा सकते हैं। उसके बाद में मैं और मेरे पति नाम दीक्षा ले लिए थे, इसीलिए हमने उस घर पहुंच करके उन सारी चीज़ों को हटा दिए। उस संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के हमने वो नारियल बांधे थे, ताला लगा हुआ घर को हमने खोल दिया सारा चीज़ को। उसके बाद में आज वहाँ क्रिश्चियन लोगों की चर्च होती है। उसके बाद में सर जी एक दिन हम स्कूटी में अपने पति के साथ जा रहे थे, 60-70 की स्पीड में थे। हमारी भयंकर एक्सीडेंट हो गई थी, लेकिन परमात्मा की दया से ना गाड़ी कुछ हुआ, हमें हल्की फुल्की चोट लगी थी और हम लोग उठ करके घर तक वापस जा सके। हमने इलाज भी करवाई, लेकिन हमें कोई चोट नहीं आई थी। आज संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ग्रहण करके हमने अपने परिवार को बताया, प्रमाणित करके दिया, तो आज मेरे परिवार में कोई भी नशा नहीं करते हैं और परिवार में शांति है। नशा अपने आप छूट गया सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान मात्र से। और आज हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई ताबीज नहीं है, हमें कहीं पर भी जाके दिखवाना नहीं पड़ता है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान मात्र से, उनके आशीर्वाद मात्र से ही हमें ऐसा लगता है कि हमें परमात्मा मिल गया है, हम अब सही रास्ता में हैं। हमें ऐसा कवच मिल गया है कि हम अब कहीं पर भी जाते हैं, ना लोग हमें कुछ कर पाते हैं, ना हमें किसी प्रकार की वैद्य दवाई करवानी पड़ती है। इस प्रेत बाधा की वजह से मेरे पति को किसी प्रकार की जॉब नहीं मिलती थी। सारे एग्ज़ाम में वो पास हो जाते थे, लिस्ट में भी नाम होता था, लेकिन बुलावा कभी भी नहीं होता था। और मैंने उनको बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे हैं कि आप एक बार आशीर्वाद लेंगे तो घर की समस्या और आपके ऊपर जितनी भी समस्या है सारी ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि ये इतना बोल रही हैं, तो उन्होंने इंटरनेट पे सर्च किया और वो पढ़े, और उनके पास सिर्फ 500 रुपया थे, लेकिन छुपते छुपाते उन्होंने मेरे कहने पर ट्रेन में बरवाला आश्रम पहुंच गए। उसके बाद में उन्होंने नाम दीक्षा ली। उसके बाद में वहाँ बैठे भक्तों से उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी समस्या है। तब वहाँ के भगत लोगों ने उन्हें कहा कि अभी तो आपने बीज लगाया है, थोड़ा इंतजार कीजिए, फल अवश्य मिलेगा। तब मेरे पति ने ठीक है कह के निकले ही थे और बरवाला आश्रम गेट पर ही थे, और उन्हें फ़ोन आया, आपकी जॉब लग चुकी है, आप आ सकते हैं। और बंदी छोड़ की बहुत ज़्यादा कृपा हुई संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, नहीं तो हमारे यहाँ पैसे की बहुत कमी थी, लेकिन संत रामपाल जी ने सारे चीज़ ठीक कर दिए। अभी वो दुबई में हैं और अच्छे से वहाँ पर जॉब कर पा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। अभी परिवार में हमारा अभी भूत प्रेत की कोई बाधा नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि आप शुरू से ही ईसाई धर्म से संबंधित हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको ईसाई धर्म के बारे में क्या बताया है, कृपया हमारे दर्शकों को बताइए। संत रामपाल महाराज जी जब सत्संग कर रहे थे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब बाइबल के बारे में उन्हें सृष्टि रचना पढ़ के हमें सुनाई, और उत्पत्ति ग्रंथ में सृष्टि रचना में उसने जब हमें एक एक चीज़ को हाथ रख करके दिखाया, तब हमें समझ में आया कि वास्तविक पूर्ण परमात्मा कौन है, कैसे मिलेगा। सब चीज़ उन्होंने हमें वर्णन करके बताया, तो हमें समझ में आया कि अब हमें परमात्मा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। जब संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग में बाइबल के बारे में एक एक वाक्य को हमें बताया, तब हमें पता चला कि पूर्ण परमात्मा कौन है। जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके ईसाई धर्म वाले लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी?
आज जितने भी संगत मुझे देख रही हैं, मैं खासकर अपने क्रिश्चियन भाई बहनों से, सिस्टर फादरों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग एक बार संत रामपाल जी महाराज जी से चर्चा करें, उनके बताए हुए ज्ञान को पढ़ें, समझें और अपने बाइबल से ही मिलान करके देखिए। ईसा भी आए थे, उन्होंने अपने पिता के बारे में ही बताने की कोशिश की थी। तो आप लोग, अभी भी समय है कि आप लोग इसको समझें और अपना कल्याण करें। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा नीचे टीवी पर पट्टी पर दिखाई दे रहे हैं नंबर, उस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं और नामदान केंद्र पर नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। इसका क्या अर्थ बना है कि जैसे जो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, गीता जी में लिखा है। और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख है, मूढ़ है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच है, मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख है। गीता ज्ञान दाता यानी ब्रह्म कहता है मेरी पूजा भी ना करते ये। एक समय एक भस्मागिरी नाम का एक तपस्वी था, तमोगुण शिव की साधना करता था और भगवान शिव के गेट के सामने धरना धर दिया, ऊपर को पैर नीचे को शीश करके सिरासन पर 12 वर्ष खड़ा रहा। एक दिन पार्वती के प्रार्थना से भगवान शिव से कहा पार्वती जी ने कि आप तो देवों के देव हैं, महादेव हैं, आपका भगत क्या मांगता है, इसको देव यहाँ से चलता करो, इसको उस समय सुबह सुबह माथे लग गई हो यहाँ पर। भगवान शिव ने कहा कि बोल भाई भस्मागिरी क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा कि आप वचनबद्ध हो जाओ प्रभु तब मांगू। शिव जी ने कहा वचनबद्ध हो गया बच्चा, मांग क्या मांगता है। वो खड़ा हो गया, फिर तो छोड़ दिया सिरासन, सीधा खड़ा हो गया। कहने लगा भगवान आप ये भस्म कड़ा दे दो। भगवान शिव जी के पास एक भस्म कड़ा था, हाथ में पहन रखा था, और कोई भी किसी की तरफ ऐसे करके उसके सिर पे करके नू कह दे भस्म, वो भस्म हो जाता था। इसका खूब पता था भस्मागिरी ने। अब उसने किस लिए तपस्या की थी भगवान शिव जी की कि पार्वती को तो पत्नी बनाऊंगा, भस्म कड़ा लेकर शिव जी ने मारूंगा। जो ही भगवान शंकर ने वो कड़ा निकाल कर दे दिया कि ले बच्चा। भगवान शिव ने न सोचा था यो जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए लेता होगा राक्षसों से। भगवान शिव ने ये भी ना पता था तेरा दुश्मन है, भगत नहीं। हाथ में कड़ा आते ही कहने लगा होले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। अब जो तेवर बदले दिखे श्री भगवान शंकर जी ने, तमोगुण शंकर ने, और अपने पुजारी की से के, तो भगवान शिव जी ने वहां से फिर खका उठा दिया, 100 की स्पीड पकड़ दी, भाग लिए जोरते। पीछे पीछे भस्मागिरी, आगे आगे भगवान, पाछे पुजारी, आगे और भगवान, और उनका सांग लिकट रहा वहां पे। अब कहते हैं फिर विष्णु रूप में परमात्मा आए, पार्वती रूप में, और उसको कहा भस्मागिरी डट जा, क्यों भाग रहे हो, आप मेरे लिए ही तो प्रयत्न कर रहे हो, रुक जाओ कि पहले मैंने इसका काम कर लेने दे फिर रुकूंगा। भस्मागिरी कहता है पहले शंकर न मार लो फिर बात करूंगा तेरे से। पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि देखो आपके पास भस्म कड़ा है, वो आपके पास निकट थोड़ा आ सकता है, और आप आओ मेरे साथ, कुछ बैठेंगे बातें करेंगे। वो डट गया, रुक गया। तो फिर वो कहने लगी डांस करके दिखा मुझे।
भस्मागिरी कहता मैं तो तपस्या करनी आदमी हूं, मैंने डांस तो ना करना तक ना, डांस तक करके दिखाना पड़ेगा तब मैं प्रसन्न होंगी। तो उन्होंने बोला करने लग गया डांस कि मैं बताती हूँ ऐसे करो नो करके, और जो उनसे हाथ में कड़ा था वो सिर पर करवा लिया, और कर ऊपर और कर। जब ऊपर आ लिया, जब उन्होंने कह दिया भस्म, वो भस्मागिरी मर गया, भस्मासुर कहलाया। फिर उसके बाद वो राक्षस। फिर विष्णु रूप धारण करके वहां पहुंचे भगवान शंकर, जहां एक्सप्रेस हो जा रहे थे, वहां जाकर खड़ा होके के डट जा भोलेनाथ, डट भगत भाई रुक जा। अब देखा विष्णु जी है, भागले आजा, भागले। बोला कहाँ क्या क्यों भाग रहे हो? कि भस्मागिरी ने मेरे से ऐसे ऐसे धोखा कर दिया। तो भगवान विष्णु रूप में परमात्मा थे, वो पूर्ण ब्रह्मा की रक्षा करते इनकी। कहने लगे कि देख वो मैंने मार दिया, ये तेरा भस्म करा रहा, पकड़े ना जच्ची उसका, कि उसका तो बहुत भयंकर रूप विकराल रूप था, वो नू कैसे दे दिया कड़ा। तो वापस आए, बताया कि ये राख पड़ी उसकी, यहां मरा वो। तो भगवान शिव जी का कलेजा ठंडा हुआ। रामी ने भगवान माने थे, यह कथा रोज पढ़ा करते कि भगवान भस्मागिरी का आगे भाग लिया शंकर जी। अगर अविनाशी होते, अजर अमर होते तो कहते आजा भाई, करके करेगा। जैसे कबीर परमात्मा को ऐसे काट दिया था, 50 टुकड़े शेख तकी ने करवा दिए थे, अरण्यों के न्यों खड़े हो गए भगवान सामने। और भी बहुत सी यातनाएं दी थी, पर मालिक उसमें गंगा में डुबो दिए थे, बाहर खड़े पाए थे। अपने आत्माओं, ये तमोगुण के पुजारी राक्षस कहलाया, भस्मागिरी नहीं, भस्मा असुर कहलाया उसके बाद वो। और रावण ने तप किया था, साधना भक्ति की थी, इसी तमोगुण भगवान शंकर की प्रक्रिया को उठाना है महापाप, घोर पाप होता है अबला को उठा के जबरदस्ती लाना। और फिर वो भगवान उसके शिव जी के बड़े भाई की पत्नी यानी विष्णु की पत्नी तो माँ के तुल्य होगी, और शिव जी का पुजारी सीता ने ढा ले गया, कौड़ को वध कर दी, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरा। और रजोगुण के यानी ब्रह्मा जी का पुजारी था हिरण्यकशिपु, अब उसने के जुल्म किया, बेटे का दुश्मन हो गया, राक्षस कहलाया। और कैसे उसका अंत हुआ। अब विष्णु जी के पुजारी जो सतोगुण के हैं, ये वैष्णु कहलाते हैं। एक समय कुंभ का मेला भरा हरिद्वार में, वहां पर ये सभी कुंभ के पर्व में स्नान करने के लिए, पर भी लेने के लिए जाते हैं। गिरी, पुरी, नागा, वैष्णव, और ये अलग अलग अपने वहां अलग अलग ग्रुप में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। गिरी अलग, पुरी नारे, सन्यासी नारे, नागा नारे, और वैष्णु अलग। और फिर स्नान करने के समय सभी प्रस्थान कर देते हैं अपने अपने मुखिया के पीछे पीछे। ऐसा ही हुआ। सबसे पहले नागा कति नंगे रहते हैं, वो हजारों की संख्या में थे, वो पहुंच गए वहां हर की पैड़ी पे हरिद्वार में, और सब पर स्नान करने की पोजीशन पकड़ गए। पीछे तो आगे वैष्णो साधुओं का पूरा ग्रुप, कोई हजारों की संख्या में। वो जाकर कहने लगे नागाओं तुम बाद में स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम कोई वस्त्र भी साथ नहीं रखते, हम बिल्कुल नी इच्छा घूमते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ, हम प्रथम स्नान करेंगे। वैष्णो साधु कहने लगे रे पशु की तरह तुम नंगे फिरो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरण फिर दो, बाहर मरो, हम नहाएंगे पहले, आज तुम प्रथम नहाने वाले हो गए हो। कहने का भाव ये है, वो गंगा भी भूल गए, भगवान भी याद ना रहा, लट्ठम लट्ठा तीर निकाल लिया, तलवार काट ली, एक दूसरे को कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये त्रिगुण उपासक कटका मर गए वहां पर। तो ये कर्म किसके हैं? राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। गंगा का पानी मैला होता, 2 मिनट पाछे नहा लो भाई, कोई बात ना, हम ये बैठे यहाँ पर। एक आम आदमी से गिरा करैक्टर इन लोगों का व्यवहार। अगर आप गंगा कहीं स्नान करने गए भी हो, कभी डले डोहा थे जब हम भी जाया करते, कोई आकर कहता भाई मैं भी नहा लो, कहा जा, उसको स्थान देते थे, कहा जो आप भी नहा लो। आम व्यक्ति का व्यवहार अच्छा, इनको महात्मा कहना कहा हम, और इनसे जाकर दीक्षा लें, इनको इनसे मोक्ष माने, इसके विषय में
परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम धड़ जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेथ ना जाण्या वहां जा तेग चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। कहते हर पैड़ी, हर की पैड़ी कहे भगवान के प्रति कोई दया नहीं और आपस में कत्लेआम कर रहे हैं, और काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साधु को आवे महात्मा। और कहते इनके तो दर्शन भी कोई करने जाए ना उसने भी नरक पठावे। हमने आसपास देखा गाँव में, हमारे गांव में नाथों का डेरा था एक, अब भी है, तो जो भी उनके संपर्क में आता उन्हें पहले सुल्फा पहन सिखाते, उसको एक चलम सी रखा दे मिट्टी की इतनी सुल्फा भर कर टन कर देते, फिर वो चोरी करता क्योंकि आदि बन जाता, घर के यहाँ तो लुकमा लाता दाने लाता, उन्हें सुल्फा पीना डेली, तो न्यो बिगाड़ दिए। न कहते इनके दर्शन जाओ उन भी नरक भेज दें, ये काहे कि भक्ति कराओगे करेंगे। अब धर्मदास इन बातों न सुन के बहुत प्रभावित हुआ। पुण्यात्माओं, बहुत कुछ परमात्मा ने उसको समझाया, उस प्यारी आत्मा ने बड़ा ध्यान से सुना, लेकिन ये मन, ये पुराना रंग जल्दी से हटता नहीं। काफी देर सुनते सुनाते फिर कोई ऐसी बात कह दी धर्मदास जी ने कि महात्मा जी आप तो बहुत कड़वी कड़वी बातें कह रहे हो, क्या इनकी पूजा करने वाले निकम्मे होते हैं? परमात्मा ने कहा मैं नहीं कह रहा, आपकी गीता बोल रही है। कहने का भाव ये है कि धर्मदास जी ने फिर से परमात्मा की बातों में अरुचि व्यक्त कर दी। अरुचि व्यक्त की तो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी फिर अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हुए तो वो फिर रोने लग गया, फिर रोने लग गया, हे भगवान मेरे पे गलती बन गई। इतना अच्छा ज्ञान दिया और सारे सत प्रमाण दिए, अब क्योंकि हम श्रद्धालु इतने हैं, हम इन भगवानों की जो पूजा करते थे इनके विषय में कुछ सुनना भी पसंद नहीं करते कुछ दिन तो। लेकिन पुण्यात्माओं, अगर कोई दंत कथा सुनाता हो, अपनी महिमा व्यर्थ बनाता हो तो वो नहीं सुननी चाहिए। सदग्रंथों में लिखे प्रमाणों को नहीं मानता है तो वो आदमी ठीक नहीं। उसके विषय में परमेश्वर कहते हैं जानबूझ साची तजय करे झूठते ने, और ताकि संगत है प्रभु सपने में बना दे। ये सोचकर परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। अब धर्मदास के सामने अंधेरा छा गया। और पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा को सर्व सुखदायी बताया जाता है, वो परमात्मा जहाँ प्रकट हो जाता है 100 किलोमीटर में तो कम से कम शांति हो जाती है। और वो तो बैठे उसके कति साथ में, जैसे किसी का कोई हाथ पर गर्म पानी या चाय गिर गई हो, उसमें कितनी पीड़ा होती है, और उसके ऊपर बर्फ का टुकड़ा रख दिया जाए, कैसा महसूस करता है? जैसे उस पर कुछ भी नहीं है, शांत हो जाता है। ऐसी दशा है भगवान जब उसके पास थे तो उसको इतनी शांति थी। परमात्मा के दूर होते ही उसके अंदर वही फिर पीड़ाएं, जैसे रह पुत्र के इधर उधर की बातें, वो नूर फलाना नूर न्यू कर दूं, ऐसे कर दूं। ये आग है सबके अंदर, जल रहा है प्राणी अपनी अपनी आग में। तो वो महसूस, उसको जो आनंद हो रहा था वो खत्म हो गया, और जो ज्ञान उसे मिला वो प्रमाणित। और फिर भी अपनी किस्मत को रो रहा कि मैं कैसा दुष्ट हूं, मैंने भगवान खो दिया। अब फिर रोने लग गया, अब त्याग दिया, वापस चल पड़ा अपने घर की तरफ। और क्या कहता है परमात्मा की वाणी में लिखा है, तावा रोवत धर्म नीनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर।
अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुटगी खेती। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मगजोवे। अब रो रहा है, अन्यों कहे भगवान बेग में लो करूं अपघाता, अब ना जीऊं सुनो विधाता। अब धर्मदास जी नो देखे कि भगवान कहीं मेरे पीछे तो नहीं है, ऊपर तो आकाश में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मगजोवे। चारों तरफ देख रहा हूं, दसों दिशा को, ऊपर को नीचे को, और कहता बेग में लो कर हूं अपघाता, मैं ना जीऊं सुनो विधाता। हे परमात्मा जल्दी दर्शन दे दो, अब मैं जीऊंगा नहीं मैं आत्महत्या करूंगा। रोता हुआ घर पे आ गया। उसकी पत्नी ने सोचा भगत क्यों रो रहा है, क्या बात होगी इसको। अब बोल नहीं पा रहा, इतना बुरी तरह रो रहा। कहां से, मथुरा से रोने लगा था, बांधवगढ़ पहुंच गया एमपी में, 800 किलोमीटर। 2 दिन 3 दिन जाने जाने में लगे होंगे उसको। पैदल चलते थे पहले, कोई सवारी नहीं होती थी ऐसी, और श्रद्धालु थे, पैदल चलते थे। उसकी पत्नी का नाम आमनी देवी था, बड़ी धर्मात्मा थी, लेकिन कभी कभी वो भी भगत के साथ कुछ दान धर्म के बारे में कुछ कंजूसी करती थी। तो उसने सोचा कि भगत क्यों रो रहा है और वापस कैसे आ गया। इसका तो 1 महीने का टूर प्रोग्राम था, आ गए 7वें दिन। उसने सोचा बात क्या है, और उसके मुंह की तरफ देख रही है, और वो रो ऐसे बुरी तरह रहा जैसे किसी बालक के माँ बाप दोनों मर जा, वो बालक रोया करे। इतना बुरी तरह जमीन पर ऐसे मुंह के बल पट गिर के और बुरी तरह रो रहा है। उसने सोचा इसके क्या हो गया, इतना जल्दी कैसे आ गया। आमनी ने सोचा कि हो सकता है इसके किसी ने ठग ने पैसे लूट लिए हों, और मैं कंजूस हूं, कई बार इसको कह देती थी जब वो धर्म भंडारे करता था, खुले हाथ में टोक दिया करती कि बच्चे के खाएंगे, घना दान ना करया करें। तो उसने सोचा कि अब ये न्यू ना रो रहा हो कि मैं इसका पैसा किसी ने ठग लिया, चुरा लिया, जो यात्रा के लिए ले गया था। और अब ये सोच रहा होगा कि मैं दोबारा जान की सोचूंगा, पैसे की कहूंगा तो यह मुंह चढ़ावेगी। तो उसने सोचा कि जिस कारण से रो रहा हो। अब वो धीरे धीरे कहती है सेठ जी क्यों रो रहे हो, किसी ने पैसे निकाल लिए होंगे ना, तुम्हारे तो भगवान ने बहुत दे रखा है, और कितने पैसे ले जाओ आप, और ले जाओ, आप पूरा करके आओ अपना कार्य। अब वो 1 घंटा 2 घंटा खूब रो लिया, धीरे धीरे सबकता हुआ, रोता रोता कहता कि आमनी यदि मेरा यूं धन खो गया होता, भौतिक धन कोई चुरा लेता, मैं नहीं रोता, फिर ले जाता, लेकिन मेरा वो धन गुम हो गया जो मुझे अब शायद मिला नहीं, और वो मिला नहीं, मैं जी नहीं सकता। आमनी ने पूछा कि ऐसा कौन सा धन था तेरा। अब ये बात सुनकर बैकग्राउंड की तरफ देखकर वो फिर बुरी तरह रोने लग गया। रोते रोते काफी देर के बाद जब उस थोड़ा सा स्वाभाविक सा हुआ, शांत हुआ, सारी कथा बताने लगा। जो परमात्मा ने ज्ञान सुनाया था सारी ज्ञान सुनाया, और सृष्टि रचना सुनाई थी परमात्मा कबीर जी ने। अब इतना समय नहीं रहा आज के सत्संग में, नहीं वो भी सुनाता, कल सुनाएंगे। तो वो उसने सारी सुनाई, और सब अपने साथ घटना बताई कि ऐसे ऐसे मैंने रोटी बनाई, उसमें चींटियां जल गई थी, और वो चींटी सारी जीवित कर दी, मेरा पाप काट दिया। अब आमनी कहने लगी इतना बढ़िया ज्ञान, और खुद भगवान देने आ रहे थे, आप तो व्यापारी हो, आप तो बिजनेसमैन थे, यू सौदा चूक कैसे गए। अब धर्मदास कहता जिंदगी में पहली बार मैं आ रहा हूं सौदे में, आज तक हार का मुंह नहीं देखा था, अब के मैं चूक गया अपना सौदा, और ये घाटा मुझे शायद इस जीवन में पूरा नहीं होगा, और मैं जी नहीं सकता।
जो साधनाएं हम करते थे वो एक आने की नहीं, आगे का रास्ता कति नहीं, घोर अंधेरा हो गया मेरे सामने, जीऊं कैसे भगतमती। आमनी कहने लगी आपने तो गलती कर दी। ब्रह्मा विष्णु महेश गेला कौन सी अपनी रिश्तेदारी थी, और ये कौन से अपना रोज मिला करते थे। हमने सुनी सुनाई बातों पर उन पासरी थे, और इतना बढ़िया ज्ञान सारे प्रमाण आपको बता गए, आपने चरण पकड़ने चाहिए थे। कहने लगा इसी भूल को तो रो रहा हूं, जैब के भगवान आगे, अब क्या नहीं छोड़ूंगा चरण उनके। ऐसे बीत गया 6 महीने बीत गए उनको। धर्मदास जी ना कुछ खावे, मुश्किल से एक आध फुल्का रोज, मुश्किल से उसकी पत्नी कह सुन के खिलाओ उसको, और वो ना काम काज में रुचि, वो भक्ति करा करता हुआ कति वत करने की कोई ना थी। सुबह बैठ जाए दरवाजे तो बाहर द्वार के ऊपर गेट पे है, अनु देखे दूर ताई, जैसे बिलड़ी ने श्री राम की प्रतीक्षा की थी। अब जैसे उसको कहीं दूर से कोई आता दिखाई देता, चल पड़ता उसकी तरफ कि शायद महात्मा आगे। और एक बार पुण्यात्मा जिसकी चाह आपको हो जाती है, आम व्यक्ति भी वो शायद दिखने लग जाता है उसको, वहां तक जाता है कि ना ये तो कौन ही, वो नहीं है। फिर पता लगा किसी से कि एक महात्मा बैठा है जंगल में, गांव नगर के बहुत से लोग उसके पास जा रहे हैं दर्शनार्थ। भगत जी भी पहुंच गए, धर्मदास जी। अब देखा कि भाई हो सकता है महात्मा वही हो सकते हैं, लेकिन इनका ज्ञान से परीक्षण होगा। धर्मदास जी ने प्रश्न किया उस साधु से परीक्षा करने के लिए, जब महाराज जी होंगे तो वो बात मैं प्रश्न करूंगा, टू दी पॉइंट जवाब देंगे। उसने प्रश्न किया महाराज जी मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। धर्मदास ने कहा। वो साधु महात्मा बोला करो बच्चा, कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? वो साधु कहता अरे कैसी बात करता है, इनके कोई माता पिता नहीं, अदरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर। और जान गया यो ठीक कोई नहीं, मन मन महीनों कहे तो रॉन्ग नंबर उठ का आ गया। ऐसे 6 महीने बीत गए। फिर परमात्मा ने उसकी पत्नी में प्रेरणा की। उसकी पत्नी ने कहा कि मार भगत आपका तो वेट भी आधा रह गया, अरे ऐसे तो आप मर जाओगे। भगवान ने जब विछड़े आपसे कुछ तो कहा होगा, भी कैसे मिले वो? उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि जहां धार्मिक भंडारे होते हैं, यज्ञ होते हैं, साधना करते हैं, जो भगत इकट्ठे होते हैं तो कोई भंडारा करता है तो मैं अवश्य जाता हूं और उनको ज्ञान चर्चा करते हैं परमात्मा। जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27 में पढ़ा कि वो परमात्मा हमारे यज्ञों में, धार्मिक यज्ञों में बिजली अत्यधिक गतिशील पदार्थ के समान आकर प्राप्त होते हैं, गुप्त रूप में आकर बैठ जाते हैं वहां पर। और वही परमात्मा ने कहा कि ऐसे धर्म भंडारे होते हैं, धार्मिक यज्ञ होती हैं, वहां अवश्य जाता हूं, क्योंकि वहां मेला भरता है, भक्तों को बैठा के समझाते हैं, चर्चा करते हैं गुप्त रूप में। तो आमनी ने कहा कि आप भंडारा कर दो। धर्मदास ने कहा एक दिन में क्या हुए हैं, एक दिन में तो पता भी ना चला किसी ने। आमनी बोली तू कर ले जितने दिन का करना हो, कि 3 दिन का करना पड़ेगा, अब 3 दिन का कर ले। उसने 3 दिन का भंडारा, धर्म भंडारा दिन निश्चित कर दिया। आसपास सब चिट्ठियां भिजवा दी कि दूर तक। अब पहले दिन सब भोजन करके साधु संत महात्मा चले गए, वो तो नहीं आए। देखता रहा। उसकी पत्नी ने पूछा कि महाराज जी आए क्या? महाराज जी कि नहीं आज तो नहीं आए। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन आफ्टरनून हो गया, भंडारा यानी भोजन चल रहा है, साधु संत खाकर जा रहे हैं। अब धर्मदास ने फाइनल फैसला कर लिया, क्योंकि वो तो आत्मा के पुकार सुनते हैं, कि यदि आज आप नहीं आए कल आपका दास नहीं रहेगा संसार में। अब जिया ही नहीं जा मेरे थे, आज तक की आस ठीक शायद आज आ जाएंगे। अंतर वो तो कहते हैं चिट्ठी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब लहर। अंतर्यामी सारी जानते हैं। उन्हें देख लिया कि आज भगत मरेगा,
अब नहीं जीवेगा, क्योंकि फाइनल फैसला था उसका कि ये भंडारा पूरा हुआ और मैं आत्मघात करा। तो फिर कहते हैं बेग मिलो करहूं अपघाता, मैं ना जीऊं सुनो विधाता। उसी समय जब रहे ना 10-20 भगत 50-60 भोजन खा रहे थे महात्मा, ये उसे महात्मा जिसे बताए थे आप ताई। तो उसी समय एक कदम का पेड़ था लगभग 200 फुट की दूरी पर, जहां भंडारा चल रहा था। वहां आकर उसी जिंदे वाले महात्मा के रूप में वहां पर बैठ के आके धर्मदास की, वैसे वो देख तो रहा था ऐसे ऐसे पल पल में, जब नंग आ गई हक वो बैठे महाराज जी तय नंगे पैरा नो दौड़ के नो देखा जानते कति नो वो एक चरणा नो सीने लाग गए न चपट गए, जो कर बालक अपने माता पिता के चिपक जाता है। अन्नो देखे अन्नो कहे भगवान इनका छोड़ के ना जाइयो, हे परमात्मा आपका जो कहोगे सारी सुनूंगा। तब परमेश्वर ने कहा धर्मदास इन पहले फारग कर नकलिया ने, फिर बतलावांगे आपस में। अगना जी इब ना जाइए, अगना ही बच्चा नहीं जाऊंगा, बस विश्वास कर मेरा। अब वो एक कदम एक बार दन्यू देखे, फिर उन तो डगाने थे वो फटाफट करके फारेगे और परमात्मा को कहा आपके दास की कुटिया आ जाओ यहाँ पर थोड़ी देर अंदर बतलावांगे। अंदर ले गया भगवान को, जैसा भी बैठने को साधन दिया, अपनी पत्नी से बुलाया कि आजा भाग जा भाग गया आमनी मेरा धन पा गया, मेरा धन पा गया। दोनों एक एक पैर पकड़ कर बैठ गए। तब आमनी ने कहा कि भगवान आपका बच्चा ये तो बहुत नर्म आत्मा का है, इसको तो मैं सांत्वना देती रही ना पहले मर लेता। ए भगवान आप तो अंतर्यामी हो, इतना दुखी नहीं करना चाहिए था अपने बच्चे को। तब परमात्मा ने कहा कि आमनी यो काल का दूत हो रहा था, ये जिसको मैं 2 बार मिला इसने सारी बात मानी, फिर किता काल फिर इसका आंट लगा देता। मैं इसके साथ था, इसको मर नहीं देता बेटा, ये तो मर लेता पहले ही। इसका बड़ का डैमन है, इसका लोहा गर्म किया है, अब लोहा गर्म होए बिना चोट मारे जाओ तो उसका कोई फायदा नहीं। अब इसका अंतःकरण साफ हो लिया, आज बेटी जो मैं कहूँगा सारी मानेगा और ये सत्य इसके हृदय में उतरेगी, इसलिए थोड़ी सी देर करी थी। तो पुण्यात्माओं ये वो समर्थ है, कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिर जब लग धरती आकाश। फिर सारी कथा सुनाई, दोबारा से कई दिन रुके, उनको खूब ज्ञान समझाया, दोनों ने उपदेश लिया। तो परमात्मा ने तो गवाह बनाना था उनको, धर्मदास की आत्मा को। परमात्मा तो चले गए, अभी मैं जाता हूँ फिर आऊँगा। कुछ दिन के बाद एकदम धर्मदास जी को दर्शन दे रहे ओनली, और कहा धर्मदास चल तुझे मैं अपना सतलोक दिखाता हूँ। पहले धर्मदास ने प्रार्थना की थी पहले कई बार, ले चल आज तुझे अपना स्थान दिखाता हूँ। सतलोक लेके गए धर्मदास को, आत्म शरीर वहीं पड़ा है, अचेत पड़ा है। 3 दिन हो गए, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, गाँव के इकट्ठे हो गए, नगर के लोग आने लगे। क्या हो गया कि पता नहीं क्या बीमारी होगी, बेहोश पड़ा है, कोमा में चला गया। तीसरे दिन परमात्मा ने सब कुछ ऊपर दिखाया, सारा सतलोक दिखाया, वहाँ की सतीथि दिखाई, वहाँ की जो रहते हैं हंस लोग, वहाँ की दुनिया दिखाई सतलोक की, कि यहाँ कभी बुढ़ापा नहीं आता, यहाँ कोई दुख नहीं होता, यहाँ मृत्यु नहीं होती, तुम यहाँ रहते थे और अपनी गलती से तुम चले गए। अब धर्मदास कहता है भगवान मुझे यहीं रख लो, अब वापस ना भेजो प्रभु, मुझे यहीं रख लो, मत भेजो महाराज, काल की नगरी है मोहे राख लियो महाराज, काल की नगरी है मोहे, मत भेजो महाराज हमसे बिगड़ी है। वहां जाके पता चलता है कि सचमुच हमने जुल्म किया, यहां से गए किस कारण से गए, और रो है बहुत बुरा हाल कर दिया भगवान, वापस ना भेजो तो बहुत बूढ़ी स्थान है। तो परमात्मा ने कहा तो जा बेटा, यहां ऐसे नहीं आया जाता, नो तो मैं सारे ले आऊँ एक बार, तुम अपनी मर्जी से गए हो, अपनी इच्छा से वापस आओगे और इतने ही धनी बनकर आओगे जितने धनी यहाँ से बनकर गए थे। जितने धनी तुम यहाँ थे भक्ति के शक्ति, इतनी नीचे इकट्ठी करनी पड़ेगी। उसका मैं एक मंत्र दूंगा, तू चल वहाँ पर, और मंत्र दूंगा तुझे सतनाम, उसका सिमरण करना,
उसके भक्ति के धन से तुम वापस आओगे, ऐसे नहीं बेटा बात बनेगी। तीसरे दिन जब वापस आत्मा छोड़ दी तो वो जागा। तब उसको पता चला कि ये भगवान तो वहां काशी में रहता हूं, सतलोक से जाकर पता लगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਬਲਾਚੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੁਆਬਾ। ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸੀ, ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਲ ਹੈ ਤਾਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਏ? ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ 2010 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਆਇਆ ਸੀ BSF 'ਚੋਂ, 20 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਬਹੁਰ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ। ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਟਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ 2011 ਦਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤੜਫ 'ਚ ਬੀਤਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਮਰ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਤਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਧੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਟੀਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਤਰ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮਾਂਗੇ, ਸਾਧੂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਠੋਕਰ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੜਫ ਬਹੁਤ ਸੀ ਬੈਰਾਗ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੇ ਉਮਰ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੇਹਰੀ ਹੋਈ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ TV ਚੈਨਲ ਲਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇਖਿਆ ਉਹ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਦੇਵੋ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਕਬੀਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜਾ ਆਲਮ ਕਬੀਰ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਉਹ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸੰਤ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਦਾੜੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਬੁੱਕ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਚੱਲ ਫ੍ਰੀ ਬੁੱਕ ਮੰਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਆ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਬੁੱਕ ਆ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਨ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੜਫ ਹੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਆਪ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੀਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਬਰਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੜਫ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਮਿਲੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ? ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਐਸਾ ਕੀ ਸੀ?
ਸਰ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ, ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਪੁਸਤਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਦ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਗੀਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤਾ, ਕਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਲਾਚੌਰ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਸੰਤ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ, ਆਪ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆਪ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਭਟਕਣਾ ਸੀਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਾਧੂ ਬਣਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਜਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸਰ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਾਰ ਗਏ ਆ, ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁਰਾਣ ਸੰਗਲੀਆਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ 2 ਅੱਖਰ ਦਾ ਮੰਤਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਮੰਤਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੱਸਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ 5 ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਸੁਭਾਗਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਦੱਸਿਆ, ਮੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਉਸ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏ? ਸਰ ਜੀ ਲਾਭ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤਾਂ ਲਾਭ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਉਹ ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਲਾਭ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰਕ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਸਾਣੀ ਖਿਲਾਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਣੀ ਖਿਲਾਈਓ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਬੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਤੋਂ ਮਸਾਣੀ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੂੰ ਗੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਗੇਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਸਾਣੀ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਬ ਫਟਦਾ ਇੱਦਾਂ ਫਟੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦਾ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੁਸਕ, ਮਾਸ ਸੜਨ ਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਮਸਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਿਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਚੂਹਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਟਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵੇਰੇ ਸੌਂ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਗਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਬਾਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਿਆ ਖਿਲਾਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਤੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੂਹਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਗੁੰਨ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਖਿਲਾ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਤੇ ਇਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਲੰਬੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲਾਭ ਸਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ, ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਤੜਫਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੋਕਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਲੜਕੀ ਸੀ ਬੜੀ, 2 ਲੜਕੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਹਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਭਗਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਗਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਰਮੈਣੀ ਕਰਤੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੀ। ਜਦ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਆਹਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬੋਝ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਤੋਂ ਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਇੱਦਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਲਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੜਕੀ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਗਤੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਜਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆ ਉਹ ਲਾਹ ਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲਤਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਡੈਡੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਮੈਣੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਭਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਭਗਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਰਮੈਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 1 ਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਲੜਕਾ ਮੇਰਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਗਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਮੈਣੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਜੋਗ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਸੀਗੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਸੀ। ਕਈ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਟੁੱਟਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੂਹਰੇ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਲਈ ਵੀ, ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਲੜਕੀ ਸਾਰਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਮੈਣੀ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਮੈਣੀ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੜਕਾ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਫ੍ਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, TV ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬੁੱਕ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੋਝ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਲਾਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਭਗਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।